px is equals to 2 plus 5x. Okay, this is the given polynomial. So therefore now here we have to find out the p2 value. So at place of the x we have to write down the 2. So here 2 plus 5 into 2. So this will give you 2 plus 5 2s are 10. So 2 plus 10 is equals to 12. Okay, and here write down the p2. So therefore p2 value is equals to 12. Write down the, yes, this is the equation 1. Similarly, yes, for sp minus 2. So p minus 2 is equals to plus 5 into. Now here at place of the x write down the minus 2. So this will 2. Now 5 2s are 10 and one number is positive, one negative. So on multiplication we will get the negative number. Okay, so here you will get the minus 10. So plus minus minus. So 10 minus 2 is equals to n. Greater number is 8. Its sign is negative. So here negative sign will come. So this is your equation number 2. Now yes, we have to find out yes p1 value. p1 is equals to 2 plus now 5 into 1. So this equals to 2 plus 5 and 5. So this is equals to 7. This is your equation number 3. Okay. Now yes, write down. Therefore p2 plus p minus 2 minus p1 is equals to. Now yes, what is the p2 value? p2 value is equals 12 plus now what is the p minus 2 value? It is minus 8. And yes, what is the p1 value? It is the 7. Okay, so here there is a minus sign. Okay, now yes, minus and p1 value is equals to 7. Now open the bracket. What you will get? 12. Yes, plus minus 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 plus minus minus 7. So this is equals to 12 and this minus 8 and minus 7 will become minus 15. Now plus minus minus 15 minus 12 is equals to 3. Greater number is 15. That's why 15 minus 12 is equals to 3 and greater number is 15. Before that there is a negative sign. So here we will get the minus 3. Okay, यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को? minus 3 मिल गया. Okay, now see, yes, the second part of this question, second part. Now yes, px is equals to 2x square minus 5 under root 3x plus 5. So therefore p, now yes, 5 under root 3. This is equals to 2 into x. At place of the x we have to substitute 5 under root 3. Now here there is a square on the x. That's why here we have to square it. Minus 5 under root 3. Now at place of the x we have to write down the 5 under root 3 plus 5. So this is equals to 2 into, now square of the 5 under root 3. Square of 5 is 25. Square of under root 3 is 3 minus 5 5 is 25. So here we will multiply the numbers which are present outside. So 5 5 is 25. Yes, under root 3 into under root 3. So this will give you the, yes, 3 plus 5. So this is equals to, yes, now yes, multiply. Yes, 25 3 is a 75. 75 into 2 150 minus, yes, 25 3 is 75 plus 5. Now yes, see here, yes, 150 plus 5 is equals to 155 minus 75. Always yes, follow the BODMAS rule. BODMAS rule हमेशा क्या करना चाहिए? Follow करना चाहिए while solving the, yes, मैथ्स को सॉल्व करने के टाइम में. तो ऑलवेज यस प्लस प्लस जो सेम नंबर होंगे प्लस करने के बाद ही क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्शन. तो नाउ यस 150 प्लस 5 इज एडेड. नाउ यस दिस विल बिकम minus 150, sorry 155 minus 75. Okay, so 5 minus 5 is equals to 0. 15 minus 7 is equals to 8. So yes, here we got the 80. Okay, understood? Now yes, write down the answer. So yes, for the first one, what is the answer? Minus 3, and here answer is 80. Now yes, we have completed the practice set 3.5. practice set 3.5 हम लोगों का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है.
अब हम लोगों को क्या देखना है, ये प्रैक्टिस सेट 3.6 क्या देखना है हम लोगों को 3.6. तो now here yes we have to find out the factors. Already yes I told you what is the factors. Yes, the numbers, okay, the numbers which yes divide any dividend completely means remainder 0, then that divisor is called as the factor and quotient also called as the factor. Quotient को भी factor बोलते हैं और divisor को भी factor बोलते हैं when we get the yes remainder as 0. जब रिमाइंडर हम लोगों को 0 मिलता है तो उस टाइम क्या है, वो जो yes divisor और quotient होते हैं both are the factor. So here we have to find out the factor of the what polynomial के factors find out करने. Okay, so yes for finding the factors we have to write down the polynomial in the form of the product. तो उसको किस फॉर्म में लिखना पड़ता है हम लोगों को, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है. तो अब देखो ये प्रैक्टिस सेट 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. प्रैक्टिस सेट 3.6 ओके 3.6 जो प्रैक्टिस सेट है उसके प्रॉब्लम्स अभी हम लोग करने जा रहे हैं. तो देखो ये फर्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन. फर्स्ट वन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ polynomial given below. Okay, this is the question. Now you see the first one, 2x square plus x minus 1. Okay, 2x square plus x minus 1. Now yes its solution. Okay, now you see this is in the form of the trinomial. ये क्या है, ट्राइनोमियल के फॉर्म में है. ओके, 3 टर्म है इसमें. कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है. तो हम लोगों को क्या करना है, ये कैसे फैक्टर्स निकालेंगे. फर्स्ट राइट डाउन द गिवन पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. तो ये which numbers factor to be find out, that we have to first know. So here yes whose factor we have to find out can be determined by yes multiplying the coefficient, the square term and the constant term. तो यहाँ पे क्या है, ये x स्क्वायर जो स्क्वायर टर्म है उसके पहले कौन सा नंबर है वो नंबर को क्या करना है, लेना है. तो उसके पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा किसको देखना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को. एक्स स्क्वायर के बिफोर क्या है 2 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, यस माइनस 1. तो नाउ यस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2. तो हम लोगों को फैक्टर किसका लेना है, माइनस 2 का. अब देखो यहाँ पे जब भी निगेटिव नंबर होगा फैक्टर तो हम लोगों को ऐसे दो नंबर चूज करने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए. और दोनों को ऐड करके ओके ऐड करके किसके बराबर होना चाहिए, मिडल वाले नंबर के. तो ये क्या है, मिडल में 1x है तो वो किससे मैच होना चाहिए, 1 से मैच होना चाहिए. और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव. तो ग्रेटर नंबर को पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर को निगेटिव देंगे. तो आप देखो ये ऐसे दो नंबर चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -2. और यस दोनों में डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे निगेटिव है ना, तो यस उसका एक्चुअल में जो क्या है, ये जब निगेटिव रहता है तो हम एडिशन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, ये दोनों में डिफरेंस किससे मैच होना चाहिए, मिडल टर्म से. और जो भी मिडल टर्म की साइन होगी वही साइन ग्रेटर नंबर को हम लोग रख देंगे. तो ये -2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है. अब यहाँ मिडल नंबर क्या है, ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर को हमेशा मिडल नंबर की साइन देनी है. यहाँ पे मिडल नंबर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो ग्रेटर नंबर होगा उसको पॉजिटिव साइन देंगे और स्मॉलर नंबर को नेगेटिव. अब देखो ध्यान से, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 इंटू सॉरी यस 2 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, -2 मिलेगा. और अगर दोनों को ऐड करें, -2 प्लस क्या है, सॉरी 2 प्लस -1 इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस तो क्या मिलेगा, 1. तो ये जो 1 जो है ये किससे मैच हो रहा है, ये मिडल टर्म से.
मतलब कि वो टर्म को एडिशन करने पे तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दोनों में गैप मिडल टर्म से मैच होना ही चाहिए। ओके, देन ओनली दैट विल बी द प्रॉपर फैक्टर, तो वही उसका क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर होगा। क्लियर हो गया कैसे हम लोगों को फैक्टर फाइंड आउट करना है। टू का क्या फैक्टर है, एक ही फैक्टर है टू का, 2 1 जा 2, और दोनों में क्या है, ये नेगेटिव नंबर है तो दोनों का गैप क्या होना चाहिए, बीच वाले के बराबर। तो 2 और 1 में कितने का गैप है, और या डिफरेंस कितने का, 1 का है। अब मिडल नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर नंबर को हमेशा किसकी साइन देना है, यहाँ की साइन, और स्मॉलर को निगेटिव। तो नाउ यस दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो 2x² जो पहला टर्म है एज इट इज लिखना है, कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखना है। क्या करना है हम लोगों को, जो फर्स्ट टर्म है 2x² एज इट इज लिखना है, और लास्ट टर्म क्या है, एज इट इज लिखना है। और मिडल में जो x है उसकी प्लेस पे हमको क्या लिख देना है, ये जो हमने फैक्टर निकाला है इस फैक्टर के साथ में वेरिएबल भी आएगा। तो क्या है, ये पहला 2 फैक्टर 2 है और उसके साथ क्या अटैच करना है, वेरिएबल। और उसके बाद क्या है, ये फैक्टर -1 है, तो यहाँ -1 और उसके बाजू में क्या आएगा, वेरिएबल। बट जनरली 1 इज नॉट शोन, ओनली वेरिएबल इज रिटन। अब देखो ये ट्राइनोमियल से कितना बन गया है, 3 टर्म थे ना, तो अब ये 4 टर्म हो गया, मतलब पोलिनोमियल है सिर्फ। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। अभी ये 4 का पेयर्स हो गया, तो 4 में से 2 की पेयर्स बना के क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 2 और x x, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया और ये x कॉमन आ गया। तो इधर क्या बचा अभी, ये 2 ओनली x बचा, क्योंकि 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x²। और यहाँ पे दोनों 2x बाहर आ चुका है कॉमन के फॉर्म में, 2x यहाँ क्या है, ये कॉमन के फॉर्म में बाहर आ गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या होता है, ये कॉमन 1 होता है। ओके, तो 1 बचा, मतलब 1 लेफ्ट हो गया, बिकॉज 2x इंटू 1 क्या मिलेगा हम लोगों को, 2x ही मिलता है। तो दैट्स वाई यस इफ द होल नंबर, यस ये जो पूरा का पूरा नंबर है 2x कॉमन में है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, तो क्या होगा, यस इट इज 1, तो वो क्या होगा, 1 होगा। अब नाउ ये सीयर देखो, ये दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिख रहा है, और बीच में क्या है, ये दोनों के पहले माइनस की साइन, तो -1 विल बी कॉमन, -1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब क्या बचने वाला है, दैट वी हैव टू राइट इन द ब्रैकेट। तो यस फ्रॉम दिस टर्म x विल बी लेफ्ट, तो x बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, तो जब भी कुछ नहीं बचेगा तो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, +1, मीन्स जो यहाँ पे हम लोगों को कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में यहाँ बचा, सेम वही थिंग्स यहाँ भी ब्रैकेट में बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनिशियली यहाँ पे 3 टर्म्स थे, उसका फैक्टर लिए तो कितने हो गए, 4 टर्म हो गए। 4 टर्म होने के बाद में क्या किया, 2 की पेयर्स बना के हम लोगों ने क्या है, कॉमन निकाला। अब ये क्या हो गए, 2 टर्म हो गए। देखो ये क्या है, माइनस की साइन है, ये पूरा का पूरा 2x x+1 ये सिंगल टर्म है, फिर क्या है -1 x+1 क्या है, एक सिंगल टर्म है। तो इन दिस 2 टर्म, दोनों टर्म्स में जो ये x+1 का जो ब्रैकेट दिख रहा है, इट इज कॉमन। ये 2x+1 का ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो ये हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन x+1। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बचे हुए पार्ट्स को। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, x+1 का ब्रैकेट कॉमन है, x+1 का ब्रैकेट क्या है, कॉमन, तो यहाँ क्या बच रहा है, 2x बच रहा है, दिस 2x विल बी रिटन हियर, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखो x+1 का जो ब्रैकेट है यहाँ कॉमन है, केयरफुली देखो, x+1 का ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, -1, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे। नाउ यस दिस इज द फैक्टर ऑफ इट। अब ये इसका फैक्टर है, फैक्टर क्यों है, क्योंकि अगर x+1 ये एक ब्रैकेट में है और इसके बाद में 2x - 1, तो बिटवीन दिस टू देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा है। अभी यहाँ अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन रहता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता, बट ये दोनों ब्रैकेट में आ गए, तो ये क्या है, ये एक सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर है, और दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ द 2x² + x - 1, तो ये इसका फैक्टर है, अंडरस्टूड। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया। अगर हम लोग ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते तो अगेन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन 2x² + x - 1।
अगर हम ये दोनों ब्रैकेट को वापस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सेम यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो क्या है ये जो अलेबिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यस फाइंडिंग द फैक्टर और फैक्टराइजिंग इज द अपोजिट ऑफ इट। जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन का क्या है, ये फैक्टर फाइंड आउट करना, यस फैक्टराइज करना, उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सी द सेकंड वन, सेकंड 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। अब फैक्टर किसका निकालना है, पहले वो डिसाइड करना है आपको। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ऑलवेज यू हैव टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म। यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, उसका कोएफिशिएंट देखो, तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, एंड लास्ट टर्म क्या है माइनस 3। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। तो ऑलवेज व्हेन देयर इज अ माइनस साइन हुज फैक्टर वी हैव टू फाइंड आउट, तो वन नंबर विल बी पॉजिटिव एंड वन विल बी नेगेटिव, और ग्रेटर नंबर जो भी होगा उस फैक्टर में, वो जो मिडल में नंबर है उसी नंबर की साइन बड़े वाले को देंगे और छोटे वाले को ये माइनस की साइन देंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये 6 के फैक्टर, तो पहला तो फर्स्ट फैक्टर यही है 6 का, 2 3 जा 6। दूसरा फैक्टर क्या है 6 का, अब देखो 6 1 जा 6, और कोई फैक्टर है क्या, नहीं। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये माइनस 6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो 6 उसके पहले माइनस होगा या तो 1 के पहले माइनस होगा। अब देखो हम लोगों को ऐसे फैक्टर चाहिए कि दोनों का गैप किससे मैच हो, मिडल टर्म से। तो अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करते एज अ फैक्टर, माइनस 6 का फैक्टर अगर हमने किसको कंसिडर किया 2 और 3 को, तो दोनों में गैप कितने का, डिफरेंस कितने का, 1 का। दोनों में कितने का गैप है, 1 का। तो यस 1 का गैप इस मिडल टर्म से मैच नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी करेक्ट फैक्टर। यहाँ पे ये करेक्ट फैक्टर नहीं होगा, कौन, 2 और 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो गैप है वो 1 का है, लेकिन यहाँ पे देखो 6 और 1 में गैप कितने का है, 5 का है। ओके, दोनों में गैप कितने का, 5 का, और ये 5 जो किससे मैच हो रहा है, मिडल टर्म से मैच हो रहा है, किससे, मिडल टर्म से। तो ऑलवेज रिमेंबर, यस क्या होना चाहिए, यस जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो एक नंबर नेगेटिव होता है और एक नंबर पॉजिटिव होता है। तो डायरेक्टली वो एडिशन है, बट इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये गैप है दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये डिफरेंस हमेशा किससे मैच होना चाहिए, मिडल टर्म से। तो 6 और 1 में 5 का गैप है, 5 का डिफरेंस है, जो मिडल टर्म से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्टर। और ये जो है 2 और 3 में कितने का गैप है, 1 का, तो ये क्या है, इस क्वेश्चन के लिए ये सुटेबल फैक्टर नहीं है, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। अब मैंने क्या बोला कि जो मिडल टर्म में कौन सी साइन है, पॉजिटिव, वही मिडल टर्म की साइन किसको देनी है, बिगर नंबर को। और ये जब भी ये निगेटिव फैक्टर होता है तो ये हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और यहाँ पे निगेटिव नंबर, तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -1 क्या मिलेगा, -6, और दोनों में गैप कितने का हो रहा है, 5 का। एक्चुअली ये डायरेक्टली क्या है, 6 और -5 का एडिशन है, जो हम लोगों को क्या देता है, +5। तो नाउ ये सी इट सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन देखो, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। Okay, now yes, here first term will be written same as it is, first term 2m square as it is लिखेंगे, और जो लास्ट का टर्म है वो भी क्या लिखेंगे, as it is। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म दिस विल बी रिप्लेस बाय द फैक्टर्स। उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, फैक्टर से, जो फैक्टर हमने फाइंड आउट किया। तो क्या है ये, +6 है, +6, उसके साथ में वेरिएबल जो भी है इस पॉलिनोमियल में, दैट वेरिएबल विल आल्सो बी रिटन अलोंग विद दिस फैक्टर। फिर क्या है, ये -1, उसके बाजू में भी क्या आएगा, यस जो वेरिएबल है वो आएगा। अब ट्राइनोमियल 3 टर्म थे, 3 टर्म से कितने हो गए, 4 टर्म हो गए। तो 4 टर्म हो गए तो क्या हो जाएगा, दो दो की जोड़ियां बना लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, और इन दोनों में फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब क्या है, ये यहाँ पे 2 है और इधर 6 है, तो 2 छोटा नंबर है और 6 बड़ा नंबर है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 2 3 जा 6 आता है कि नहीं, 2 के टेबल में 6। तो यहाँ पे 6 को हम
प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू शो ओके इन द क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए कि कैसे ये दोनों में 2 कॉमन है, ये समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। ओके, तो जो ये छोटा नंबर 2 है और ये बड़ा नंबर 6 है, तो छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो छोटा नंबर ही क्या होगा, कॉमन। तो अब देखो 6 को हमने किस फॉर्म में देख लिया, 2 3 जा 6, तो यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 को कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद में यहाँ पे भी m दिख रहा है और यहाँ पे m स्क्वायर दिख रहा है, तो m और m दोनों में प्रेजेंट है, तो m विल ऑल्सो भी कॉमन। अब देखो 2m क्या है, इस 2m स्क्वायर में से बाहर आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ओनली m। अगर 2m इंटू m मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, 2m स्क्वायर। और यहाँ क्या मिलेगा, अभी 2 हमने 6 में से 2 कॉमन ले लिया है और m को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यस यहाँ 3 बचा, और बीच में कौन सी साइन है, प्लस की, +3। इट्स क्लियर नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये दो टर्म में यहाँ पे -1m है और -3 है, तो इसमें m है लेकिन इसमें m नहीं है, तो m कैन नॉट बी टेकन एज कॉमन। फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है, तो वी नो दैट 1 3 जा 3 होता है, हमको मालूम है कि 1 3 जा 3 होता है। मैंने बोला जब भी पूरा का पूरा नंबर या कोई नंबर कॉमन नहीं मिले तो कॉमन क्या होगा उसका, 1 होगा ऑलवेज, तो 1 नंबर क्या होगा, कॉमन। तो अब देखो 1 3 जा 3 होता है, जैसे कि 2 3 जा 6 था, तो अब देखो यहाँ पे 1 और ये 1, ये 1 1 दिखने लगा कि नहीं, तो ये जो 1 1 दिख रहा है हम लोगों को, ये 1 हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे क्या है, माइनस की साइन, तो -1। अब यहाँ पे क्या बच गया, यस -1 बाहर आ गया तो m बच गया, और यहाँ पे क्या है, यस -1 आ गया तो क्या बच गया, यहाँ पे +3 बच गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितने टर्म थे, 1 2 3 4, 4 टर्म थे, 4 टर्म से कितने टर्म हो गए, 2। पहला टर्म क्या हो गया, देखो केयरफुली, 2m इन ब्रैकेट m+3, तो दूसरा टर्म क्या हो गया, देखो ब्रैकेट में -1m+3, ये क्या है, सेकेंड टर्म है। अब दो टर्म में हम लोगों को ये ब्रैकेट का जो टर्म्स है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। अभी तक पूरी तरह ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं आए क्योंकि यहाँ पे एक माइनस की साइन हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे इसके लिए, ये m+3 का जो ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लेंगे, पहले लिखेंगे, और ये देखो अभी m+3 का ब्रैकेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको m+3 के ब्रैकेट को क्या कंसिडर किया, कॉमन, तो इसके पहले क्या बच रहा है, 2m बच रहा है, तो 2m को यहाँ पे पहले लिख देंगे। ओके, अब देखो इसका काम कंप्लीट हो गया कि ये m+3 बाहर है तो 2m कॉमन है। अब इसके बाद देखो m+3, ये m+3 कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉमन के फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, m+3 कॉमन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1, तो ये क्या है इसका, ये फैक्टर है। ओके, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 2m स्क्वायर प्लस 5m-3, तो ये क्या है, ये इस प्लस माइनस के फॉर्म में है, टर्म्स के फॉर्म में है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसी पॉलिनोमियल को इस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही क्या है, इट्स फैक्टराइजेशन है, या फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। इट्स क्लियर नाउ, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यस ये सब इतना कंपलसरी नहीं दिखाना, लेकिन क्या है, यस मैंने क्यों दिखाया यहाँ पे, आपको समझने के लिए। नाउ यस सी द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 12x² प्लस 61x प्लस 77। ओके, नाउ यस सी क्वेश्चन नंबर 3, 12x² plus 61x plus 77. Now yes, this is very important for the next class also, ये next class 10th के लिए भी क्या है, बहुत ही important है, क्योंकि यस क्या है वहाँ पे, यस तुमको ये क्या मिलेगा, यस इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, सेम थिंग्स यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और यस यू हैव टू फाइंड आउट देयर द solution of that equation, तो that time you have to find out the factors, उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर।
तो ये ऑल स्टेप्स सेम होंगे, ओनली 2 स्टेप और आगे करेंगे तो क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो दैट्स व्हाई यस यू शुड यस लर्न दिस factorization of the quadratic polynomial. Now see yes factors किसका निकालना वो important है। पहले तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर के पहले 12 है एंड लास्ट टर्म क्या है 77। अब इन दोनों का फैक्टर निकालना है हम लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 7 जा 84 कैरी 8, 12 7 जा 84, 84 एंड 8, 84 एंड 8 92, तो 924 हो गया। कितना हो गया 924। तो अब हम लोगों को क्या कर सकते हैं, फॉर आवर इजीनेस 12 को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 4 3 जा 12, और इसका फैक्टर कैसे कर सकते हैं 7 into 11। ओके, तो अब हम लोगों को ऐसे दो नंबर की पेयरिंग्स करना है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का फैक्टर निकालना है, और पॉजिटिव नंबर का जब फैक्टर निकालना रहता है हम लोगों को तो दोनों फैक्टर का सम देखना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे अभी तक क्या था, निगेटिव था, तो हम लोगों को फैक्टर का क्या देखना पड़ता था, डिफरेंस। डिफरेंस किससे मैच होना चाहिए था, मिडल टर्म से। अब जब यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो हम लोगों को क्या देखना है, दोनों फैक्टर का सम। सम मतलब दोनों को ऐड करके, वो ऐड करके किससे मैच होना चाहिए, मिडल टर्म से। और मिडल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे, और अगर मिडल टर्म निगेटिव रहता तो दोनों फैक्टर निगेटिव होते। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज करेंगे, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 924 बनता ही है, लेकिन अगर दोनों को प्लस कर दे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो क्या करेंगे, फैक्टर का प्लस करना पड़ेगा। दोनों का जो फैक्टर का जो प्लस है वो किससे मैच होना चाहिए, 61 से मैच होना चाहिए। और जब माइनस रहता तो क्या देखने का, गैप बीच वाले के बराबर होना चाहिए, दोनों फैक्टरों का गैप, डिफरेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 7 4 जा 28 एंड ये क्या है 11 3 जा 33, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा 8 + 3 11 5 एंड 6, तो ये गुड फैक्टर है 28 एंड 33। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, हम लोगों को 924 का फैक्टर क्या मिल गया, 28 एंड 33, क्योंकि अगर यही दो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, 924 मिलता है, और दोनों को अगर ऐड कर दे, देखो 28 into 33 तो क्या मिलेगा 924, और अगर 28 + 33 करें, मैंने क्या बोला, व्हेन फैक्टर इज यस नंबर इज पॉजिटिव उस फैक्टर वी आर फाइंडिंग, तो वी हैव टू टेक द सम। और जब ये नेगेटिव नंबर हो उसका फैक्टर जब फाइंड आउट करते तो क्या होगा, दोनों का गैप, डिफरेंस किससे मैच होना चाहिए, बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ था, तो यहाँ देखो ये 61 हो रहा है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्टर। ओके, ये 924 का फैक्टर तो ये भी है, लेकिन अगर दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, 9 + 2 7 + 2 9, 7 + 1 8, 89 बन रहा है, और ये 89 इससे मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है ना, तो ये फैक्टर बराबर नहीं है। कौन सा फैक्टर बराबर है, 28 और 33 का। अब देखो इसका सॉल्यूशन, 12x² + 61x + 77, so this is equals to what I told you is first term will be written same and last term will be written same। फर्स्ट टर्म जैसे है वैसा ही लिखना रहता है, लास्ट टर्म जैसा है वैसा ही लिखना रहता है, मिडल टर्म को जो फैक्टर फाइंड आउट किए उस फैक्टर के फॉर्म में लिखना रहता है। तो ये क्या है, ये मिडल टर्म, ये क्या मिलेगा, ये पहला 28 है तो 28, और साथ में क्या लगाएंगे, वेरिएबल जो भी इस पोलिनोमियल में है, तो यहाँ x है तो x, दूसरा क्या है ये 33, और बाजू में क्या लिखेंगे x। अब क्या हो गया, 4 टर्म्स मिल गए हम लोगों को। ये सब अंडरलाइन वगैरह करना जरूरी नहीं है, वनली आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों में क्या है, ये कॉमन ले सकते, बड़ा नंबर कौन सा होगा, 12 और 28 को डिवाइड करने वाला वही आपका यहाँ कॉमन होगा। तो 12 के टेबल में क्या है, ये 28 नहीं आता है, आता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 12 डायरेक्टली इन दोनों में कॉमन नहीं है। लेकिन अगर 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, तो सबसे बड़ा जो नंबर है 4 है जो दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 4 दिखाई दे रहा है, ओके, ये सब लिखना जरूरी नहीं, ये एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा। ओके, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो क्या है, 4 कॉमन है,
दोनों में, और साथ में x कॉमन है, तो क्या बच गया यहाँ पे 3, और बाजू में क्या है x, क्योंकि हमने क्या किया 12x स्क्वायर को ब्रेक इसमें किया 4 इंटू 3 में, तो 4 कॉमन आ गया इसमें, और इसको किस में ब्रेक किया 4 7 जा 28। ओके, ये दोनों 2 से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन हम लोगों को ऑलवेज क्या लेना रहता, बिगर नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ 2 और ये 28 12 का बिगर नंबर डिवाइजर कौन है 4 है, तो 4 कॉमन आएगा, प्लस नाउ यहाँ क्या बचा 4 को कॉमन ले लिए तो 7 एंड x, तो यहाँ देखो अभी ये 33 और 77 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है 11, तो 11 3 जा 33, 11 7 जा 77। ओके, तो इसमें से क्या होगा 11 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा 7x। ओके, इट्स क्लियर नाउ। अब देखो यहाँ ध्यान से, सॉरी हियर x विल नॉट कम, यहाँ x नहीं आएगा बिकॉज ये यहाँ पे x भी क्या है कॉमन में था, यहाँ 77 के साथ x नहीं है। ओके, देखो ये केस यहाँ करेक्शन है, ये 7x विल नॉट कम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन हम लोगों को क्या दिख रहा है 3x प्लस 7 का ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, दैट विल बी रिटेन इन वन ब्रैकेट, एंड जो रिमेनिंग है 4x प्लस 11 ये दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ इट, ये इसका क्या है फैक्टर है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट्स है क्या? अगर डाउट्स है तो नाउ यस अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट नॉट अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट्स है स्टूडेंट? यस, किसी को कुछ डाउट्स? घर पे रिवाइज करो, ओके, तो आप लोगों को समझेगा प्रॉपरली कि किस तरह से फैक्टर निकाला जाता है, कॉमन कैसे निकाला जाता है, एंड प्रैक्टिस एट होम। और इसका पिक मैं भी आप लोगों के इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा 9th के स्टैंडर्ड के। किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके, नाउ यस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इनिशियली क्या है, वाई स्क्वायर के पहले का नंबर 3 है, तो 3, लास्ट का नंबर क्या है -1 कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू -1 क्या होगा -3। अब 3 का तो एक ही फैक्टर है, हाँ 3 का और कोई फैक्टर है क्या? ऐसे कोई दो नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करके 3 आता नहीं, सिर्फ क्या है 3 1 जा 3, या यू कैन से 1 3 जा 3, तो एक ही नंबर है, तो इसका एक ही फैक्टर होगा। अब देखो यहाँ मिडिल टर्म में कौन सी साइन है, माइनस की, तो ये हमने क्या बोला, जब भी यहाँ पे निगेटिव नंबर होता है, जब भी यहाँ पे निगेटिव नंबर होता है, तो जो मिडल में नंबर रहता साइन रहती वही साइन बड़े नंबर को देना रहता है। ओके, तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, बड़ा फैक्टर क्या है -3 है, तो उसको यहाँ मिडल की साइन दे देना। यहाँ क्या था देखो, प्लस था कि नहीं, इसमें +5 था, तो बड़े नंबर को +5 रखा, कब, लेकिन जब भी यहाँ निगेटिव साइन होगा तो नाउ ये इसका सोल्यूशन देखो अभी, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, अब दोनों में गैप है क्या नहीं, 3 और 1 में गैप 2 का है क्या नहीं, हाँ, तो अब देखो दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखने बोला मैंने, 3y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लास्ट का टर्म क्या है -1 एज इट इज रहेगा, बीच वाले को किससे रिप्लेस कर देंगे, फैक्टर से, तो माइनस